آئے ہائے زندہ ہے، آئے ہائے زندہ ہے، زندہ ہے چلتی پھرتی میت ہے۔ یہ کیا مائک ہی خراب کر دیا تم نے؟ تقریری شروع ہوئی تو مائک ہی خراب کر دیا۔ یہ کیوں آج خراب کر دیا؟ کیوں تقریر خراب کرنے پر کھلے ہوئے نہیں کرتا میں؟ یہ باتیں بتائی نہیں جاتی، نظر لگ جاتی ہے۔ آ گیا تو جوان ہو کے، میں نہیں بتاؤں گا، لیکن آج میں بتاؤں گا جو انہوں نے نہیں بتایا۔ آج میں دکھاؤں گا تصویر کا وہ رخ جو اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ وہ شخص ہے جس کے پاس پورا خزانہ تھا مگر پھر بھی غریب تھا۔ دنیا سے کچھ نہیں لیا، چاہیے ہی نہیں۔ جس کا عشق کوئی لڑکی نہیں صرف کتاب تھی، وہ ایک نہیں بلکہ لاکھوں دلوں کی آواز تھی۔ جسم دبلا پتلا مگر آواز گرجدار تھی۔ محبت اہل بیت اس کا مقصد حیات تھی۔ تو بھائی علی سے محبت کر کے آپ اپنے آپ کو امر بنا لیجئے۔ جتنے وابستہ رہیں گے آپ اتنی زندگی رہے گی۔ دنیا بھر میں جس کی دھوم تھی وہ اتنا ہی سادہ تھا، جس کی ڈکشنری میں لفظ نفرت نہیں آتا تھا۔ وہ جہاں جاتا مجمع ادھر ہی پہنچ جاتا تھا۔ کمال کا سٹوری ٹیلر تھا، جو بتاتا دل پر نقش ہو جاتا تھا۔ 1400 برس میں تم اچھی قوم کیوں نہیں بنے جب تمہارا اللہ بھی اچھا، تمہارا نبی بھی اچھا، تمہاری کتاب بھی اچھی؟ تم اتنے برے کیوں؟ چور بازاری تم کرو، اسمگلنگ تم کرو، اپنے فرقوں میں تم ایک دوسرے کو قتل کرو اور تمہیں اچھا کہا جائے۔ وہ بومر سے لے کر جینزیز میں مشہور تھا۔ اس کا ایک ایک جملہ دنیا بھر میں مقبول تھا۔ یہ بھوت پری دیو ملک اور یہ جنات ہر شہر میں ہے یا رب تیری قدرت کے نشانات۔ امریکہ کی کانگریس لائبریری میں جس کے نام کا پورشن بھی بنا اور پاکستان میں میمز بھی۔ دنیا نے جسے سر پر اٹھایا مگر اپنوں نے ہی دل دکھایا۔ پہچانا نہیں کراچی والوں نے۔ وہ ادیب بھی تھا اور خطیب بھی، وہ شاعر بھی تھا اور مدیر بھی، وہ امیر بھی تھا اور فقیر بھی، جو لکھنؤ کی تہذیب لے کر پاکستان آیا، عشق علی کو اپنی پہچان بنایا، اسی میں نام کمایا، کئی کو پی ایچ ڈی کرائی اور کئی کا گھر چلایا، جو کمایا نام حسین پر لٹایا، نفرت کا جواب بھی محبت سے دیتا نظر آیا، پوری دنیا گھوما مگر دل ان چولی سے لگایا، حافظہ اس کا کمال تھا، جسے ایک بار دیکھا کبھی نہ بھلا پایا۔ ایج ہی واز آلموسٹ 80۔ وہ لیٹ کے بتا دیتے تھے کہ فلانی کتاب کی فلانی جلد کے فلانے پیج پہ یہ لکھا ہوا ہے۔ عزاداری اس کی شناخت تھی اور عزاداری کرتے کرتے ہی موت کو گلے لگایا۔ دنیا بھر میں اسے ایوارڈز ملے اور کچھ نے میم میٹیریل بنایا۔ 1000 کتابیں لکھیں مگر اپنی کہانی نہ سنا پایا۔ اس لیے آج میں آپ کو سناؤں گا علامہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی کی کہانی۔ میرے پاس جو دولت تھی وہ میں بانٹ کے جا رہا ہوں۔ اگر دنیا کی دولت ہوتی خدا کی قسم اسی ممبر سے ان بیٹوں میں بانٹ دیتا۔ لوگوں نے ان کی اس طرح سے قدر نہیں کی، اب احساس ہو رہا ہے جیسے قدر کرنی چاہیے تھی۔ نہ معلوم کتنے لوگوں کو انہوں نے بٹھا کے اپنے ہاں اور ڈکٹیٹ کر کے ان کی پی ایچ ڈی کمپلیٹ کروائی۔ وہ دور اسکار موضوعات کے جن پر کوئی ہمت نہیں کرتا تھا کہ ان پر بات کی جائے، یا وہ کہتے تھے بعض لوگ کہ اس پر میٹر زیادہ نہیں ہے، اس پر انہوں نے 2-2 3-3 گھنٹے کی تقریریں کی ہیں۔ علامہ صاحب کبھی عقیدے پر سمجھوتا نہیں کرتے تھے۔ بہت پیسے بنا سکتے تھے، انہیں ترجیح نہیں دی، کبھی پیسے کبھی نہیں دی، وہ عزادار تھے۔ وہ اکیلے تھے بالکل، ان کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ اپنے بچوں کی طرح پیار کرتے تھے کتابوں سے۔ سوا کتابوں کے ان کے گھر میں آپ کو کوئی عالیشان چیز نہیں ملے گی، اور وہ کتابیں ہی اتنی قیمتی ہیں کہ بس وہی ان کا سرمایہ تھی اور وہی وہ قوم کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب ایک مرتبہ ان کے پاس آئے اور انہوں نے کچھ آفر دی ان کو، تو انہوں نے کہا کہ آپ کب تک اس طرح زندگی گزاریں گے؟ جب میں نے پہلی مجلس یہاں سنی تو میں نے وہاں کی وہ ملیر والی مجلس مس کرتا تھا، اور میں یہاں سے سننے کے بعد پھر میں وہاں جاتا تھا۔ 15-20 سال اور اداروں میں بھی کام کیا، تو اس کے بعد جب ان کے پاس آئے تو ہمیں ایسا فیل ہوتا تھا کہ ہم اپنے ہی گھر میں ہیں۔ احساس ہو گیا ہے جو میم بناتے تھے ادھر کہ یار یہ ہم نے زیادتی کی، اللہ بخش۔ ان کے جانے کے بعد اگر آپ نے ان کی
उनको समझा या उसके जाने के बाद उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ। और मैंने उन लोगों को देखा है जो शदीद उनकी मुखालफत करते थे, वो बाहर बैठ के मजलिस सुन रहे होते, तो जो भी काम कर रहा होता है उसकी टांगें खींच रहे होते हैं, उसके लिए खिलाफ बातें कर रहे होते हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं। अल्लामा साहब बहुत आगे पहुंच गए थे, वो बर्दाश्त नहीं था, हासिदीन बहुत हैं हमारे। आज हम पर्दा उठाएंगे अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी की जिंदगी के उन पहलुओं से जो अब तक पोशीदा थे। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से, विद योर सब्सक्राइब। ये लखनऊ का इलाका वजीरगंज है, जहां एक सरकारी अफसर सैयद ज़हीर हसन नकवी के घर एक बच्चा पैदा होता है। माँ बाप प्यार से उसका नाम ज़मीर हसन रखते हैं। ज़मीर का नंबर 3 भाइयों और 3 बहनों में दूसरा था। घर वाले उसे प्यार से जम्मा मियाँ कहते थे। जो हमारे कुछ कजिन्स हमारी उम्र के हैं, उनमें एक आध इंडिया में है अभी, वो इसी उनकी उर्फियत से ही याद रखते हैं उनको। तो वो अब तक फोन करते हैं तो वो जम्मा भैया ही कह के हमसे खैरियत और बातें उनकी पुरानी करते हैं। मगर ज़मीर की पहचान उसके निकनेम या असल नाम से नहीं बल्कि तखल्लुस से बनी। लेकिन ये मरहला अभी दूर था, वो बहुत मुख्तलिफ था। जिस एज में बच्चे शरारतें करते हैं, ज़मीर बस चीज़ों को ऑब्जर्व करता। वालदा ज़ाकरा थी, इसलिए मरसिए, नोहे और खिताबत की ट्रेनिंग घर से ही शुरू हो गई। दादा जिम्मेदार थे और अब्बा सरकारी मुलाजिम, इसलिए उस पर पैसे कमाने की कोई जिम्मेदारी न थी। मगर वो नहीं जानता था कि कुदरत उस पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी डालने वाली है। वो जिम्मेदारी क्या थी, आगे बताऊंगा। फॉर नाउ फोकस ऑन द किड। ज़मीर की मेमोरी बहुत कमाल थी। जो एक बार देख लिया, पढ़ लिया, वो कभी नहीं भूलता। शौक भी निराले थे। उसे खेलने कूदने से ज्यादा शायरी, लिखना और ड्राइंग बनाना बहुत पसंद था। ईयर 4 या 5 की बात है, एक पैटर्न और मुख्तलिफ चीज़ें, कुछ मॉडल दिए गए थे, रखे गए थे स्कूल में और मुकाबला हो रहा था और वहाँ बनाना था। तो उन्होंने एक अंगूर की बेल बनाई थी पेंसिल से और उसको कलर किया था उन्होंने वाटर कलर से। तो वो हमारे जो मास्टर साहब थे ड्राइंग के, उनको बहुत पसंद आया। उन्होंने उसको दीवार के ऊपर जो है वो पेवस्त कर दिया स्कूल में और सब बच्चों को बुला के दिखाया। तो चिड़िया उसके ऊपर आके वो उसको रियल समझ रही थी, यानी जो वहाँ के ऊपर स्कूल के ग्राउंड में थी। भारत में मुस्तफाबाद कदीम अज़ादारी के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ की मजलिस में तारीख, अकायद, अखलाक और सीरत अहले बैत पर तफसीली गुफ्तगू की जाती है। यहाँ के लोगों को मीर अनीस से खास अकीदत है। मेहमान नवाजी और अज़ादारों के बाहमी एहतराम को बड़ी अहमियत दी जाती है। ज़मीर हसन के दादा मुस्तफाबाद के जिम्मेदार थे, इसलिए लखनऊ से मुस्तफाबाद आना जाना लगा रहता था। वहीं की तहजीब का रंग ज़मीर पर चढ़ रहा था। अज़ादारी से उसका लगाव बढ़ रहा था। और एक दूसरे हमारे ताया थे सैयद मोहम्मद रजी साहब। तो वो रजी साहब जो हैं वो बच्चों को, हम लोगों को वहाँ कस्बे में मुस्तफाबाद में मुहर्रम की मजालिस के बाद या उस ज़माने में बुला के वो पढ़ के स्टाइल बताते थे कि मरसिया की अदायगी किस तरह की जाती है। तो हमारा तो बचपना था, जब हम गुजरते थे वहाँ तो हम लोग भाग जाते थे कि भाई अब रजी साहब पकड़ लेंगे और ये मरसिया हमको सिखाएंगे। मगर अल्लामा साहब ज़मीर अख्तर नकवी साहब का ये था कि वो बहाने से सुबह से शाम दोपहर जब उन्हें मौका मिलता था वो उनके पास पहुंच जाते थे और घंटों बैठे रहते थे। ये लखनऊ की तहसीन मस्जिद है, लोगों का रश लगा हुआ है। आज पहली मुहर्रम है, यानी पहली मजलिस। अहले इल्म इंतजार में है कि आज कौन सा जाकिर कौन से मौजू पर बात करेगा। अचानक मजमे से 16 साल का लड़का निकल कर आता है और मिंबर पर बैठ जाता है। सब हैरान हैं कि ये बच्चा आज की मजलिस पढ़ेगा। वो तो किसी बड़े जाकिर को एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक दो उठकर जाने लगे, मगर जैसे ही उस बच्चे ने मजलिस पढ़ना शुरू की, बाहर वाले भी अंदर आकर बैठ गए। इतनी सी एज में क्या आवाज थी, क्या अंदाज था, क्या काबिलियत थी। उस 16 साल के बच्चे ने सैकड़ों के मजमे में उस कमाल से मजलिस की कि हर तरफ से वाह वाह होने लगी। ये बच्चा कोई और नहीं, ज़मीर हसन ही था। उस मजलिस के बाद ज़मीर हसन की धूम मच गई। लखनऊ के कोने कोने में वो मशहूर होने लगा और यही वो वक्त था जब ज़मीर ने अपनी जिंदगी का मकसद तय कर लिया। उसने अपनी जिंदगी को अहले बैत और इल्म और अदब के लिए वक्फ करने का सोच लिया। मगर ज़मीर ये नहीं जानता था कि वो अपना मकसद लखनऊ में हासिल नहीं कर सकता, बल्कि उसके लिए उसे पाकिस्तान जाना पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान में जंग शुरू हो गई।
उसी दौरान ज़हीर हसन ने फैसला किया कि वो भारत को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। अपनी जायदादें और आबाई ज़मीनें छोड़कर हिजरत करना आसान नहीं था, लेकिन मजबूरी थी। तय हुआ कि पहले ज़मीर वालदा और बहनों को लेकर पाकिस्तान जाएगा और यूं लखनऊ से ताल्लुक़ रखने वाला ये ख़ानदान 1967 में पाकिस्तान आ गया और कराची के इलाके रिजविया में शिफ्ट हो गया। लेकिन यहाँ ज़मीर हसन के लिए नए चैलेंजेस थे। भाईजान ने हमारे अप्लाई किया रेजिडेंटशिप के लिए, छोटे भाई और बहनों और वालिदा की एप्लीकेशन गई, तो वहाँ एक एतराज वारिद किया गया कि हेड ऑफ द फैमिली साथ में नहीं रहता। तो हेड ऑफ द फैमिली जो है वो हमारे वालिद साहब थे और वो वहाँ लखनऊ में थे। अब वो एक मजबूरी थी कि वो नहीं आ सकते थे उस वक्त उन्होंने बहुत तकलीफ वाला ये दौर गुजारा। दौर पुराना था मगर फॉर्मूला एक ही था कि भाई रिश्वत दोगे तो काम होगा। ज़मीर ने उस वक्त 5000 के 5 टिकट खरीदे जो रेजिडेंटशिप हासिल करने के लिए मिलने वाले फॉर्म्स पर लगाना लाजमी थे। वालिद के ताल्लुकात थे तो 2-3 जगहों से कॉल्स करवा दी। उसके बावजूद ज़मीर पूरा दिन धूप में खड़ा रहता, इंतजार करता। इतनी मेहनत के बाद जब नंबर आया तो अफसोस हुआ कि आया ही क्यों। हमारी सिफारिश जो है वो कहीं किसी डायरेक्टर के लेवल के आदमी के से पहुंचाई गई और उस डायरेक्टर ने उनके सामने फोन पे जो आदमी काम करने वाला क्लर्क था उसको फोन करके कहा कि इनके पेपर्स कंप्लीट हैं और उसके ऊपर अमल दरामद करके इनके वो डोमिसाइल इशू किया जाए। वहाँ कहने लगे, जब मैं गया उस फ्लोर के ऊपर और उसके कमरे में दाखिल हुआ तो वो उस वक्त उसके स्टैम्प पेपर को फाड़ रहा था। तो उसने कहा कि वो डायरेक्टर साहब ने कहा है कि आपके पेपर्स बिल्कुल सही हैं मगर आपको दोबारा दरखास्त देनी होगी, ये बेकार हो गए हैं। 23 साल ज़मीर जो माँ बहनों को लेकर पाकिस्तान आया अब ऑफिस के धक्के खा रहा था। लेकिन इसी बीच उसने कंप्यूटर कोर्स किया, फिर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी की और उससे मिलने वाली तनख्वाह से अपनी जिंदगी की पहली किताब पब्लिश की। पाकिस्तान में आने के बाद उन्होंने पहली किताब जो तरतीब दी वो उर्दू गज़ल और करबला, ये उनकी पहली तसनीफ थी जिसको उन्होंने तरतीब दिया था। उसके बाद दूसरी जो किताब है वो शोराए उर्दू और इश्क अली है। इसके बाद तो किताबें लिखने का सिलसिला चल पड़ा। ज़मीर हसन को जल्द ही ये एहसास हो गया कि वो नौकरी के लिए नहीं बना, उसका मकसद तो किसी और दर की नौकरी है। ज़मीर ने वो नौकरी छोड़ दी और नाम के साथ तखल्लुस लगा लिया। यूं ज़मीर हसन ज़मीर अख्तर नकवी बन गए। अब उनका सारा वक्त लिखने, तहकीक और दूसरों की मदद करने में गुजरने लगा। उनकी उम्र के जितने लड़के थे ये उर्दू के पेपर के इम्तिहान की तैयारी बैठ के भैया के साथ किया करते थे और वो गालिब या मीर या इन सब की गज़लें या जो चीज़ कोर्स की हुआ करती थी, शायरी और नस्र वगैरह, वो एक एक मिसरा और एक एक शेर की तशरीह बैठ के बताया और समझाया करते थे। मजलिसें तो और भी खतीब या जाकिर पढ़ते हैं मगर ज़मीर अख्तर नकवी का लहजा और ज़बान बहुत मुनफरिद थी। वो गोलीमार में पढ़ें या डिफेंस में, उनकी ज़बान हर खासो आम को समझ आती। लोग अट्रैक्ट होने लगे, डिमांड बढ़ने लगी, मगर ज़मीर अख्तर का ना कोई हदिया था और ना कोई डिमांड। देखिए सबूत तो यह है, अगर आप दूसरे के इमाम बाड़े में पढ़ रहे तो कुछ तो इमाम बाड़े वालों ने दिया होगा, खाली हाथ तो नहीं भेजेंगे। मैं तो अपनी मजलिस पढ़ रहा हूँ, क्या मैं खुद ही अपने को हदिया दूं? जो नाम हुसैन पर बुलाते ज़मीर अख्तर नकवी वहाँ पहुँच जाते। सिफ्तैन वो बख्शे तुझे जो हमको हैं प्यारे, हम उनके रिजाजू वो रिजाजू हैं हमारे, हैं अर्श मुअल्ला के वो ताबिंदा सितारे, बख्शाएंगे उम्मत के तेरी जुर्म वो सारे। उनके हम उम्र जाकिरीन और उनसे ज्यादा उम्र वाले मुझे याद है शिकायतन कहा करते थे कि ज़मीर अख्तर साहब कौम की आदत खराब कर रहे हैं फ्री में मजलिस पढ़ पढ़ के। ये पहला खतीब था जो ना पैसे लेता ना प्रोटोकॉल, जो चाहे मिल ले, जो चाहे पूछ ले, बच्चा जवान या बुजुर्ग, ज़मीर अख्तर सबके लिए हाजिर था। प्रोटोकॉल कभी नहीं लेते थे, वो अकेले चल देते थे। मतलब अब तो आप देख रहे हैं ना, 10-10 गाड़ियाँ, 12-12, 15-15 गाड़ियाँ ना हो तो हमारे उलमा निकलते नहीं है। अल्लामा साहब में ऐसी कोई भी वो नहीं थी। किताबों से इश्क करने वाले ज़मीर अख्तर को कभी किसी लड़की से इश्क करने का मौका ना मिला, लेकिन हाँ, एक लड़की थी जो उनकी जिंदगी में आई। 1984 में उनकी शादी तो हुई मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। ये शादी ज़्यादा चल ना सकी।
اور اس کے بعد ضمیر اختر نے کبھی دوسری شادی کا نہیں سوچا اور پوری زندگی صرف ایک کام میں لگا دی: پڑھنا، لکھنا، تحقیق کرنا اور پھر اسے لوگوں کو بتانا۔ کتنی قسم کی شاعری ہوتی ہے یہ سب ارسطو نے بتا دیا تھا۔ یہی ارسطو سکندر کا استاد تھا۔ 13 سال کی عمر تک ارسطو نے اتنا سکندر کو پڑھا دیا تھا کہ باپ کے مرتے ہی پورے ملک کا بادشاہ بنا سکندر، اور پھر دنیا فتح کرنے 13 برس کی عمر میں نکل پڑا اور یہاں جہلم آیا اور جہلم سے ہوتا ہوا ملیر تک آ گیا اور پھر یہاں سے واپس ہو گیا۔ آپ یہیں بیٹھے ہیں، وہ ملیر سے ہو کے وہ گیا سکندر۔ مشکل سے مشکل تاریخ انتہائی آسان الفاظ میں سمجھانے کا فن ضمیر اختر کو آتا تھا۔ ذکر اہل بیت ہو یا اردو ادب کی ہسٹری، میر انیس ہوں یا ابن صفی، ضمیر اختر ہر موضوع پر محفل لگاتا تھا۔ ابن صفی کے 1952 میں کہ انہوں نے پہلا ناول لکھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے مطلب ان کے انتقال تک تقریباً 138 ناول، تو اتنا زیادہ کسی ادیب نے لکھا بھی نہیں جتنا انہوں نے لکھا۔ کہتے ہیں انسان اپنے رہن سہن سے پہچانا جاتا ہے۔ ضمیر اختر کا گھر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا کام کیا تھا، ان کی روٹین کیا تھی، ان کے شوق کیا تھے۔ صرف کتابیں۔ جب آؤ لکھ رہے ہوتے تھے یہیں بیٹھے، تھوڑی دیر ہونا یہیں سو گئے، تکیے پہ سر رکھا، پھر اٹھ گئے، پھر لکھنے لگے۔ ایک دن میں دوپہر میں علامہ صاحب کے گھر گیا اور علامہ صاحب کے بڑے بھائی محسن اختر نقوی مرحوم، ان پر وہ ایک کتاب مرتب کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم ہمارے بھائی پر مضمون لکھو اور اس کتاب میں ہم شائع کروائیں گے۔ تو اس سلسلے میں گیا۔ وہ علامہ صاحب 7-8 کتابیں اپنے بھائی کی، وہ خود بھی بہت بڑے رائٹر تھے اور پروفیسر بھی تھے ان کے بڑے بھائی، تو ان کی 7-8 کتابیں انگریزی اور اردو میں لے کر آئے اور وہ صاف کرنے لگے کپڑے سے۔ تو میں نے کہا قبلہ میں کیے دیتا ہوں، آپ رہنے دیں، اور وہ بیٹھ گئے اور وہ کتابیں تھیں۔ ایک کتاب کوئی ان سے رہ گئی تو اٹھنے لگے دوبارہ، تو میں نے کہا قبلہ آپ مجھے بتا دیں، میں لے آتا ہوں کتاب۔ تو انہوں نے کوئی 5 سیکنڈ کا پاز لیا ہوگا اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم برابر والے کمرے میں جاؤ۔ اور پہلے میں ایک بات بتا دوں کہ 24,000 کتابیں ان کے گھر میں، ان کے کتب خانے میں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم برابر والے کمرے میں جاؤ اور سیدھے ہاتھ کے 5ویں شیلف پہ جو چوتھی کتاب ہے وہ تم اٹھا کر لے آؤ۔ اور میں گیا اور مجھے وہ تلاش کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ سیدھے ہاتھ کے 5ویں شیلف کی چوتھی کتاب، میں وہ لے آیا۔ اور جب میں علامہ صاحب کے کمرے میں آیا تو وہ پان بنا رہے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس کو کھولو اور اس کے 30ویں پیج پہ جو چوتھی لائن ہے وہاں سے تم دیکھو کہ یہ لکھا ہوا ہے، اور جو انہوں نے بات بتائی وہ وہیں لکھی ہوئی تھی، اور کہنے لگے کہ تم یہاں تک اس پیج تک پڑھ لو۔ ضمیر اختر کی کوئی مجلس ریپیٹ نہیں ہوتی، نئی تحقیق، نیا ٹاپک، یہاں تک کہ اگر ایک ہی دن میں 4 مجالس بھی پڑھیں تو ان میں بھی کوئی ریپیٹیشن نہیں ملتی۔ زبان ایسی کہ ہر شخص سمجھ سکے۔ مجمع بڑھنے لگا، رش لگنے لگا۔ لوگوں نے تو سنا تھا کہ جب مجلس میں ذاکر کو بلایا جاتا ہے ہدیہ اور تبرک دیا جاتا ہے۔ یہ پہلا ذاکر تھا جس نے فرش ازا خود بچھایا، ہدیہ کیا لیتا، اپنا پیسہ لگایا، ہر موضوع کو اٹھایا۔ چور بازاری تم کرو، اسمگلنگ تم کرو، ملکوں میں جا کے دہشت گردی تم کرو، اپنے فرقوں میں تم ایک دوسرے کو قتل کرو، تمہیں اچھا کہا جائے۔ اگر وہ اسی پیٹرن پہ چلتے کہ جس پیٹرن پہ سب چل رہے تھے تو اسی فہرست میں ان کا نام آتا۔ لیکن علامہ ضمیر اختر صاحب اس حوالے سے ایک الگ اپنی شناخت رکھتے ہیں کہ انہوں نے ان کی کوئی 50 یا 60 سالہ خطابت کا جو عرصہ ہے اس میں شاید 1000 موضوعات پڑھے ہوں یا 1000 سے بھی زیادہ، اور یہ بہت کم خطبہ میں ہوتا ہے کہ مسلسل موضوع دے رہے ہیں، مسلسل موضوع دے رہے ہیں۔ اپنے پیسے سے سارے عشرے کرانا، پہلا عشرہ، پھر چیلوں پہ کسی کی شہادت نہیں چھوڑتے، لازم مجلس کرتے تھے، پڑھتے تھے خود ہی، محفلیں، میلادیں، لوگوں کو گفٹ دینا، اس میں بھی جوڑے، یہ جو لاسٹ مجلس ہوتی تھی اپنے رمضان میں
जितने लोग आते थे ना उनको जोड़े देते थे बाकायदा। अक्सर लोग जब उरूज पाते हैं तो उनके लहजे और लिविंग स्टैंडर्ड्स तब्दील हो जाते हैं। जो मशहूर होने से पहले हर एक से मिलते थे, अब लोग मुलाकात के लिए अपॉइंटमेंट लेने आते हैं। मजलिस पढ़वानी हो तो महीनों पहले बुक कराते हैं। मगर ज़मीर अख्तर मुख्तलिफ थे। वो जितना मकबूल हो रहे थे उतना ही सादा थे। बहुत ही सादा, बहुत ही मोहब्बत करने वाले। कभी मतलब हम कह के मकसद लड़के वहाँ पूछते थे कि किबला आप मजलिस के बाद कोई खा, एक चपाती और वो या कोई सब्ज़ी हो या दाल, नहीं तो वो हमने बाकी को भी उनके लिए जो एहतमाम करना पड़ता है वो, बल्कि वो नाराज़ होते थे। एक जगह कहीं खाना था, उसने 3-4 डिशेस बना ली, तो उसको ज़ाहिर है उनको पता तो उसकी बच्चे की पोजीशन, तो उन्होंने मुझे बल्कि कहा कि तुमने इनको बताया नहीं। मैंने कहा मैंने बता दिया था किबला, मैं क्या करूँ वो बच्चा। अभी तो आप किसी मौलाना जाएं जो मशहूर है, अगर आपको टाइम दे दें तो बड़ी बात होगी मुलाकात का। टाइम ही नहीं देते, कितनी बार आपको चक्कर लगाना पड़े। यहाँ पे कभी मैं बहुत से उलमा के साथ रहा हूँ, कभी बगैर टाइम दिए नहीं मिलते थे, लेकिन वाहिद ज़मीर अख्तर थे। कोई भी इंसान नॉक करे और आके वो मुलाकात करेंगे, किसी को टाइम लेने की, ये बहुत बड़ी बात है। एक दफ़ा मैं घर पे बैठा हुआ था तो मेरी कुछ पोस्टों को अल्लामा साहब ने लाइक किया, मतलब उनके नाम से एक पेज था, तो मुझे लगा कि जैसे अक्सर होते हैं लोगों के पेज दूसरे लोग चलाते हैं, एडमिन चलाते हैं, तो उस टाइम फिर मैंने इग्नोर किया। फिर बाद में बहुत तफसीली कमेंट उस पोस्ट के ऊपर आया, तो फिर भी मुझे ये लगा कि कोई मतलब एडमिन कर रहा होगा, इतनी बड़ी हस्ती हैं वो, मतलब कैसे। तो उन्होंने उन्हें बाकायदा कॉल की, वीडियो कॉल की कि भाई तुम बरखुरदार, मैं ज़मीर अख्तर हूँ और तुम यकीन करो कि मैं ही हूँ। इमेजिन करें कि थोड़ी सी भी शोहरत पाने वाले कॉल भी कितनी मुश्किल से उठाते हैं, मगर ज़मीर अख्तर हर वक्त सबके लिए मयस्सर होते, बल्कि वो सोशल मीडिया पर भी अच्छा लिखने वालों की हौसला अफजाई करते, उनको मैसेजेस करते। शायद यही वजह थी कि वो लड़का जिसने जिंदगी की पहली मजलिस मुस्तफाबाद के एक इमाम बारगाह में चंद लोगों के सामने पड़ी थी, अब उसकी मजलिस में सर ही सर नजर आ रहे थे। लोग सिर्फ उसके अंदाज़े खिताबत के नहीं बल्कि आजिज़ी और हौसला अफजाई के भी फैन थे। इंचोली का वो ग्राउंड जो इससे पहले बड़े से बड़ा जाकिर भी नहीं भर सका, अल्लामा ज़मीर अख्तर के नाम पर भरने लगा। उनका अंदाज़े खिताबत और मौजू ऐसा होता कि सुनने वाले के दिल में उतर जाता। वो मजमे को कंट्रोल करना जानते थे। हर बार एक नया टॉपिक, हर खिताब में एक नया नुक्ता। वो मिंबर से फ़िक़ही मसाइल समझाने के कायल नहीं थे, बल्कि उनकी हर बात अहले बैत के फ़ज़ाइल और मसाइब के गिर्द घूमती। मसलन किसी के जहन में ये था ही नहीं कि घोड़ा भी मौजू बन सकता है जुलजना के हवाले से, तो पूरा एक उन्होंने उन्वान जुलजना रखा। अब उस जुलजना में उन्होंने सबसे पहले घोड़ों की तारीख़ कुरान से भी और जनाब सुलेमान का पूरा वाक़या, और उसके बाद घोड़ों की किस्में, अरब के घोड़े, अजम के घोड़े, रूमियों के घोड़े, अंग्रेज़ों के घोड़े, और फिर घोड़ों के शजरे, यानी हैरान कर दिया उन्होंने। और घोड़ों पर जो किताब लिखी गई थी इंग्लैंड में, उस किताब के हवाले तक उन्होंने दिए जो किताब उस वक्त तक तर्जुमा नहीं हुई थी। इस मजलिस में आप चले जाए, कोई ना कोई नया नुक्ता आप लेके उठेंगे वहाँ से। कोई ऐसी मजलिस नहीं होगी जिसमें कुछ ना कुछ आपको नई चीज़ ना पता हो, ये बड़ी बात है। एक तो ये कि वो आसान ज़बान इस्तेमाल करने के हक़ में थे ज़ाकिरी में। दूसरे ये कि कोई लंबा चौड़ा खुतबा कभी नहीं पढ़ा उन्होंने मजलिस शुरू करने से कबल। वो बहुत ही आसान ज़बान में कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं और दुरूद मोहम्मद आले मोहम्मद, इससे ज़्यादा आसान खुतबा उर्दू तर्जुमे के साथ नहीं हो सकता जो उन्होंने इख्तियार किया। अब ये उनकी एक इनफरादी हैसियत है इस सिलसिले में कि उन्होंने बिल्कुल अपनी तकरीर को आसान बनाया और उमूमी सतह पे रखा कि कम अज कम शौक रखने वाला तालिब इल्म या नौजवान जो है वो भी उनकी तकरीर को समझ सके। सिंपल इज नॉट इजी, मगर ज़मीर अख्तर को ये हुनर आता था। पूरा साल वो मरसिए, नौहे और मुख्तलिफ टॉपिक्स पर किताबें लिखते, तहकीक करते और मुहर्रम में उसे लोगों के सामने रख देते। अदब, तारीख, बायोग्राफी, कोई मौजू नहीं छोड़ा। असल में पढ़ना लिखना क्या होता है, ज़मीर अख्तर उसकी जिंदा मिसाल बन गए।
मीर अनीस से खास मोहब्बत थी। शायर आज़म मीर अनीस की शायरी में रंगों का इस्तेमाल, मीर अनीस बहैसियत माहिर हैवानात, मीर अनीस हालात ज़िंदगी और शायरी समेत कई किताबें लिख डाली। अक्सर लोग तो उन्हें मुहर्रम में ही देखते थे, मगर ये नहीं जानते थे कि सारा साल ज़मीर अख्तर करता क्या है। ये ऑक्सफोर्ड ने छापी है। ये इमाम हसन इमाम हुसैन के नाम पे इस लुगत का नाम मलका विक्टोरिया के ज़माने में ये लुगत तैयार हुई थी। इसमें क्या है, इसमें वो लफ्ज़ जो अंग्रेज़ों ने उर्दू से लफ्ज़ लिए और अंग्रेज़ी में इस्तेमाल होते हैं, जैसे जंगल का लफ्ज़ उर्दू है, अंग्रेज़ लेके आप जंगल ही बोलता है, जंगल। ऐसे ही नहीं कहता था वो कि ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। इतनी किताबें पढ़ी थीं कि जानता था क्या किताब में है क्या नहीं। बरतानिया, अमेरिका, हॉलैंड, बेल्जियम, स्कॉटलैंड, जर्मनी समेत कई ममालिक में उन्हें बुलाया जाने लगा। मीर अनीस पर इतना काम किया कि डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री मिली। लंदन में कॉमनवेल्थ अवार्ड मिला। अमेरिका की कांग्रेस लाइब्रेरी ने ज़मीर अख्तर नकवी के नाम का अलग पोर्शन बना दिया। मगर सादगी का ये आलम था कि कोई बच्चा, बड़ा या बुजुर्ग जब चाहे आकर मिल ले। उनके पास ना कोई गाड़ी, ना बंगला, ना ही फर्नीचर, बस एक गद्दा और 18,000 किताबें। कि मैं गरीब आदमी, मैं कभी अमीर हुआ ही नहीं। ऐसा नहीं है कि ज़मीर अख्तर को दूसरों की तरह कुछ ऑफर नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने हर आने वाली ऑफर को ठुकरा दिया। मुख्तलिफ तरीकों से हुकूमत के कारिंदों ने कोशिश की कि वो कुछ उनके लिए काम करें। यहाँ तक कि एक ब्रिगेडियर साहब एक मर्तबा उनके पास आए और उन्होंने कुछ ऑफर दी उनको कि हम आपको एक अच्छे मकान में मुंतकिल कर देंगे जिसमें आपकी लाइब्रेरी बहुत कुशादा कमरों में सजा के और आपके रहने का फ्लैट होगा। ये आपके फ्लैट रहने के काबिल नहीं है। तो वो सुनते रहे उनकी बात। आखिर में जब उन्होंने देखा कोई जवाब नहीं दे रहे हैं तो उन्होंने कहा कि आप कब तक इस तरह जिंदगी गुजारेंगे। तो आखिरी जुमला जो उन्होंने उनसे कहा वो ये था कि अगर आप ये जो कारपेट बिछा हुआ है मेरे कमरे में, इसको तब्दील करने की भी ऑफर करें तो वो भी मेरे लिए काबिल कबूल नहीं। वो ना किसी से घबराते थे ना डरते थे। जो फैक्ट होता था, सच्ची बात होती थी, वो करते थे। किसी के दबाव में नहीं आते थे। ये उनमें क्वालिटी थी कि किसी के कभी दबाव में हमने नहीं देखा अपनी लाइफ। हर साल आप पर होती है गार्ड रख लीजिए। अरे जब हजरत अब्बास का नाम है तो मैं गार्ड रख के क्या। जब मकबूलियत भी हो और कबूलियत भी तो दुश्मनियां हो ही जाती हैं। ज़मीर अख्तर जितनी तेजी से मकबूल हुए उतनी तेजी से ही उनकी मुखालफत होने लगी। उनके कुछ बयानात ऐसे वायरल होने लगे जिस पर मीम्स बनाई जाने लगी। सवालात उठने लगे, शायद ये उनकी गलती थी या फिर फितरत। वो जो पढ़ते जो सुनते वैसा ही सबके सामने रख देते। लड्डन जाफरी अमरोहे के थे, उन्होंने मुझे खुद सुनाया। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा लड्डन जाफरी का कुछ। बाहर तो बाहर, अंदर से भी मुखालफत हुई। सोशल मीडिया पर मीम्स और इमाम बारगाहों के अंदर हमले होने लगे। मुखालिफिन उन्हें MI6 का एजेंट कहने लगे। 12 दफा उन्होंने मेंबर से ये बात कही कि भाई अगर मैंने कुछ गलत पढ़ा है आप मेरे पास आ जाओ, मैं उसकी रिटर्न में भी दिखाऊंगा, उसकी हदीस भी सुनाऊंगा। मैं कुरान की अगर मैंने बात करी तो कुरान में भी दिखाऊंगा। ये मीम भी जो इनकी बनती थी ना, इस पे भी कभी वो नहीं लेते थे जहन पे, हंसते थे। बल्कि करने दो, इन लोगों को मजा आ रहा है, करने दो। हम लोग कभी बोले भी तो कहते हैं करने दो, जवाब नहीं देना। अल्लामा ज़मीर अख्तर को ये मालूम था कि जो काम वो करने जा रहे हैं उसमें ये तो होगा। ये बात उन्होंने 1981 में एक खत में कही थी कि मैं अपने चाहने वालों के इसरार पर इस दलदल में कदम तो रख रहा हूँ, मगर मैं नहीं जानता कि मैं उससे निकलूंगा कैसे। जी हाँ, ज़मीर अख्तर ने बाकायदा खिताबत लोगों के इसरार पर ही शुरू की थी। वो जानते थे कि जैसे उनकी फितरत है उस पर कितने उनके मुखालिफ खड़े हो जाएंगे, मगर इस मुखालफत को उन्होंने बर्दाश्त किया। जवाब भी दिए, लेकिन कभी फतवेबाजी नहीं की। तनकीद का जवाब भी तहकीक से दिया। कौन सा किस्सा ऐसा है हैरत अंगेज जो कुरान में नहीं मौजूद? एक पूरा सूरा ये कह रहा है कि 7 आदमी जिंदा सो रहे हैं, आप उसका मजाक उड़ाएंगे? हजरत ईसा मुर्दे जिंदा कर देते थे, आप मजाक उड़ाएंगे? अरे आप कुरान शुरू करें अलिफ लाम मीम से और वन्नास की सीन तक, सिवा किस्सों के किस्सा 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 जनाबी यूसुफ के किस्से का आप मजाक उड़ाएंगे?
آپ کو قرآن اتارا گیا, آپ اس سے سبق لیجئے. آپ کے سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن کے ساتھ جو اہل بیت چل رہے ہیں تو اہل بیت کے لیے بھی ویسی ہی چیزیں مشہور ہیں دنیا میں. آپ کیا ساری قوموں کو دیکھائے ہیں؟ آپ کو یہ نہیں پتا کہ فرانس میں قرآن پہ کتنا کام ہو؟ آپ کا کتاب سے تعلق ہی نہیں تو آپ سے بات کیا کریں ہم؟ لوگ اختلاف بھی کرتے, پیار بھی کرتے, مگر ایک بات کا برملا اظہار بھی کرتے کہ انچولی کا کوئی محرم اب ضمیر اختر کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. مجلس ہو یا ٹرانسمیشن, ضمیر اختر نقوی اس کا مرکز ہوتا. کئی چینلز ان کی مجالس لائیو دکھاتے, کچھ انہیں اپنے سیٹ پر بلاتے, وہ اتحاد کا پیغام بھی دیتے اور اپنا عقیدہ بھی کھل کر بتاتے. مجلسیں پڑھتے اور لکھتے لکھاتے, کئی کو ذاکر, مرثیہ خواں اور شاعر بناتے, لوگوں کی جابز لگواتے, بچیوں کی شادیاں کرواتے. لاکھوں ہزاروں بچوں کو انہوں نے جابوں میں رکھوایا. ان کے لیٹر پہ جاتے تھے, جاب ملتی تھی, لوگ ان کا بڑا احترام کرتے تھے. بہت سے اس وقت جو ہیں کئی لوگ جو جاب میں ہیں علامہ صاحب کی وجہ سے انہیں جابیں ملی ہیں. کسی کو خالی ہاتھ نہیں, کبھی کسی کی شادی کرا رہے ہیں, کسی کو کوئی پرابلم ہے وہ کر رہے ہیں, کسی کا کرایہ دینا ہے, فیس دینا ہے, یہ سب علامہ صاحب کرتے تھے. خطابت کا ارادہ نہیں تھا, لیکن انہوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ تم خطابت شروع کرو. تو اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ خطیب جو بیٹھ رہا ہے ممبر پر, خصوصیت کے ساتھ جو مکتب امامیہ کا خطیب بیٹھ رہا ہے, تو اس کو کچھ نکتے اور کچھ زاویے ایسے ہیں کہ جو اس کے دل میں راسخ ہونے چاہیے کہ اس پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا. وہ کہتے تھے کہ جیسے دعوت ذوالعشیرہ ہے, اس کا بیک گراؤنڈ معلوم ہونا چاہیے, بعثت رسول اس کا بیک گراؤنڈ, شب ہجرت وہ پوری مکمل معلوم ہونی چاہیے. یہ تو وہ موضوعات ہیں کہ جو سب پڑھتے ہیں, لیکن کچھ ایسے اختلافی موضوعات ہیں کہ جن میں باہر والوں سے بھی بحث ہے اور ود ان دی ہاؤس یعنی ہمارے مکتب میں بھی بحث ہے, اس پر آپ کو کمپرومائز نہیں کرنا ہے. بہت سارے میگزینز کے ایڈیٹرز ان سے آ کے ایڈیٹوریل لکھوایا کرتے تھے, یا یہ کہ کم از کم 2-3 ابھی لوگ حیات ہیں, اگر ان میں اخلاقی جرت ہوگی تو شاید وہ اس بات کو میری وہ کریں گے. وہ اپنے ایڈیٹر کا اپنا ایڈیٹوریل لکھ کے لاتے تھے, ان کو دکھاتے تھے, اس کی وہ صحت کرتے تھے, اس میں ترمیم و تنسیق کرتے تھے یا اصلاح کرتے تھے, اور پھر وہ تھینک یو کر کے چلے جاتے تھے. اور یہ سب بلا معاوضہ کام کیا انہوں نے, کبھی ان سب چیزوں کا کبھی کسی سے کوئی معاوضہ جو ہے طلب نہ کیا, نہ لیا, نہ قبول کیا. مصطفیٰ آباد کے زمیندار کا پوتا جس پر گھر والوں نے کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی, اس نے اپنی قوم کی ذمہ داری اٹھا لی. دنیا بھر میں عزت کما لی, بچپنا, بڑھاپا اور جوانی عشق اہل بیت, تحقیق اور کتابیں پڑھتے گزاری. وہ شخص جو چلتی پھرتی لکھنؤ کی تہذیب تھا, شفیق تھا, عظیم تھا, اسے پہچاننے میں لوگوں نے کافی دیر کر ڈالی, کیونکہ اب آ گئی تھی بچھڑنے کی باری. نام ضمیر ہے لیکن فقیر ہوں, پہچانا نہیں کراچی والوں نے, دنیا سے کچھ نہیں لیا, کوئی دولت تمہاری دنیا کی مجھے چاہیے, اور میرے پاس جو دولت تھی وہ میں بانٹ کے جا رہا ہوں. اگر دنیا کی دولت ہوتی خدا کی قسم اسی ممبر سے ان بیٹوں میں بانٹ دیتا. تیرہ ستمبر 2020 محرم کا ہی مہینہ ہے. انچولی کا امام بارگاہ شہدائے کربلا لوگوں سے بھرا پڑا ہے. ضمیر اختر نقوی بھی موجود ہیں. اس بار بھی لوگ رو رہے ہیں, سینہ اور سر پیٹ رہے ہیں. تمسخر اڑانے والے معافی مانگ رہے ہیں. پورے انچولی میں سر ہی سر ہیں, سب چیخ رہے ہیں, لیکن آج وہ خاموش ہے. وہ کوئی مجلس نہیں پڑھ رہا, پھر بھی لوگ دہاڑیں مار مار کر رو رہے ہیں, کیونکہ آج وہ ممبر پر نہیں بیٹھا بلکہ جنازے میں لیٹا ہے. جی ہاں, وہ آج نفرت کرنے والوں, اس کا تمسخر اڑانے والوں, اس پر میمز بنانے والوں کی سوچ بدل کر چلا گیا, اور اپنے چاہنے والوں, سننے والوں کے سینوں میں علم کا خزانہ منتقل کر گیا. آج صرف انچولی ہی نہیں, کئی ملکوں سے لوگ اس جنازے میں شریک ہونے کے لیے موجود ہیں. مرنے والے کی کوئی اولاد نہیں, مگر پھر بھی ہزاروں کو یتیم کر گیا تھا. جو سنتا بھاگا چلا آتا. محبت کرنے والے رو رہے تھے, ہر کوئی اس جنازے میں شریک ہونے کے لیے بےتاب تھا. مرنے والے کا آخری دیدار چاہتا تھا. نماز جنازہ ادا ہوئی, سب قبرستان کی طرف چل پڑے. جنازہ کیا تھا, جلوس تھا.
जिसे पता चलता वो शामिल हो जाता, अपनी खुशी भूल कर उसके गम में रोता जाता। किसी के लिए जम्मा भैया, किसी के लिए ज़मीर हसन और दुनिया के लिए ज़मीर अख्तर नकवी दुनिया छोड़ गया। देखें, अल्लामा साहब का इंतकाल हुआ है इतवार थी, मुझे याद है, इसलिए कि सैटरडे को हम शब्बेदारी से, हैदरिया की शब्बेदारी थी शाह फैसल में, वहाँ से मैं आया हूँ तो मुझे तकरीबन 5:30-6 बजे कायम का फ़ोन आया है कि नक़ी भाई किधर? मैंने कहा मैं अभी शब्बेदारी पढ़ के आया हूँ। मैंने कहा खैरियत? कह रहे हैं अल्लामा साहब की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है और मैं इन्हें लेके आगा खान पहुँच रहा हूँ, आप आओ। मैंने कहा अच्छा। कह रहे मैं फ़ौरन मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। कह रहे नहीं बहुत तबीयत ख़राब है, हम निकल रहे हैं यहाँ से। तो गाड़ी पे लेके, अली उनका बेटा था और ये थे कायम, लेके अल्लामा साहब को, मैं उधर से फ़ौरन उठा, वैसे ही गाड़ी निकाली, आगा खान पहुँच गया मैं फ़ौरन। मैंने कहा इनके और हम में 4-5 मिनट का फ़र्क होगा पहुँचने में। तो जब हम वहाँ गए हैं तो अल्लामा साहब की तो असल में रास्ते ही में दम निकल गया था। इंतकाल की खबर हमको उसी किसी फेसबुक के मैसेज से मिली थी, गालिबन कायम रज़ा ने या नकी भाई ने, इन दोनों में से किसी ने फेसबुक पे मैसेज लगाया था। और वो मैसेज मैंने पहले नहीं देखा, बल्कि हमारे एक यहाँ दोस्त है पड़ोसी अजहर नकवी साहब, उन्होंने देखा और उन्होंने मुझे फ़ोन किया उस वक्त, क्योंकि उनको अंदाज़ा था कि मैं जागता रहता हूँ, तो उन्होंने फ़ोन किया और फ़ोन मैंने उठाया तो उन्होंने कहा कि फेसबुक पे एक मैसेज है, आपने देखा? मैंने कहा नहीं। हमारे लिए तो 5 महीने में हमने दोनों भाई अपने खो दिए, 5 महीने के डिस्टेंस से। मैं एक रात पहले मैं यही मौजूद था, अल्लामा था, एक डिस्कस करनी थी कोर्ट के हवाले से, कोई मैटर था उस पर, तो हम 2-3 बजे तो उठ के गए एक दिन पहले रात, बल्कि 4 बजे मैं उठ के गया हूँ यहाँ से। अल्लामा साहब के साथ ही यहीं बैठे थे, खाना खाया, बातें की, डिस्कस। दूसरे दिन ये वाक़या हुआ उनके साथ, तो यकीन नहीं आ रहा था कि अल्लामा साहब मतलब इतनी जल्दी चले जाएंगे। उनके जाने से बड़ा खला पैदा हो गया है, जो रौनक थी वो अभी तक बहाल नहीं हो पाई है। उनके जाने के बाद अगर आपने उनको समझा या उसके जाने के बाद उनकी तारीफ़ कर रहे हो, और मैंने उन लोगों को देखा है जो शदीद उनकी मुखालफत करते थे, वो बाहर बैठ के मजलिस सुन रहे होते। तो 3 लड़के जो हमारा तीनों का ताल्लुक़ जो अहले सुन्नत फैमिली से है, तो उसके बावजूद उन्होंने हमारे साथ कभी जो है वो ऐसा ही, हमारा दस्तरखान पे हम उनके साथ बैठे हैं, हमेशा बच्चों की तरह उन्होंने हमारा ख्याल किया। और अच्छा, इसमें वो अहले सुन्नत में और दूसरे शियत में कोई फ़र्क करते ही नहीं थे। हमने जो इंतज़ाम किया था उससे 10 गुना पब्लिक ज़्यादा थी, इतना हमें अंदाज़ा नहीं था कि इतनी, इसलिए हम देखते थे ना कि इतनी मीम उल्टी सीधी उनके खिलाफ बातें, लेकिन इतना रश, मैं बता रहा हूँ ना, किसी के जनाजे में नहीं, मैं कई बड़े बड़े लोगों के जनाजे में शामिल रहा हूँ, इतना रश किसी जनाजे में नहीं था। सारी जिंदगी हुब्बे अली में गुजार कर, अपनी दौलत को लोगों में बांट कर, मोहब्बतें और तनकीदें समेट कर, अज़ादारी को एक मुनफरिद मकाम देकर, वो जो लखनऊ की तहजीब लेकर पाकिस्तान आया था, अचानक दुनिया से जा चुका था। जिंदगी में जितना हुआ वो लोगों को देता रहा, और मरने के बाद आज भी उसका घर लोगों में इल्म बांट रहा है। वो अब एक लाइब्रेरी है जहां कीमती से कीमती किताब मौजूद है। स्टूडेंट से लेकर आलिम तक वहां जाते हैं और फायदा उठाते हैं। खुद सोचो, जिसकी पूरी जिंदगी ही किताबों में गुजरी हो, क्या वो मीम मटेरियल हो सकता है? नहीं, ही वॉज नॉट अ मीम बिकॉज ही वॉज डॉक्टर सैयद अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी। नहीं करो, मैं समझा रहा हूँ, नाम ज़मीर है लेकिन फ़कीर हूँ। हाँ, मौला मेरा जनाबे अमीर, मैं उनका फ़कीर हूँ। ज़मीर हूँ मगर फ़कीर हूँ, फ़कीर हूँ इसलिए बेज़मीर नहीं हूँ। मैं फ़कीर, मैं बेज़मीर नहीं। मेरी उम्र मौला की मोहब्बत में गुजर गई, इसी में गुजर जाएगी। दुनिया से कुछ नहीं लिया, चाहिए ही नहीं।